हाय। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल क्या है? सेल इज a simple device to maintain a steady current in an electric circuit. It is a electrolyte cell. ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या है? एक बीकर, that is a electrolyte. Okay, that liquid is electrolyte, and here is electrode, two electrode, and here one is positive and another is negative. Okay, so name of the positive electrode is called anode. There is a positive electrode, there is a negative electrode. Positive name is anode and the negative name is cathode. And here is the electrolyte solution. Now choose a electrolyte simple solution like sodium chloride. In ionic bond, sodium lost electron and chlorine gain electron. If sodium lost one electron, so sodium get plus 1, and that electron is gain chlorine, so chlorine is minus. So lost electron is called oxidation and gain electron is called reduction. So that the electrolyte solution sodium chloride, the sodium is plus and chlorine is minus. Sodium is lost electron. When sodium is lost with one electron, so sodium get plus. So that's called oxidation and also called cation. And the chlorine is gain electron, so the reduction, and it's called anion. Okay, so cation is plus and anion is minus. So here is the positive point, that is a negative, that's the two electrode. So now at P point, the positive electrode, the potential at point P is B plus, and the B plus is greater than 0. Now another, the potential at point N is B minus, that's also greater than 0. Okay, so the potential difference between two electrodes, so the potential difference between two electrodes is, so that is a positive and that is a minus, so that is a negative and there is a positive. So the potential difference between two electrodes is the difference VD between of two electrodes is positive as a negative, so the current flow to look like this. Okay, so if I choose a resistor in here, okay, so now the potential difference between P to N is VD is B plus and minus of B minus. So that's the potential difference. We have negative potential at N point and positive potential at P point. So also the potential difference, also the charge, positive charge flow like this in that direction. If any metal or connecting point between the P to N, so that E to N, so current flow like this also that, right? So the total potential difference, the minus minus is plus, so B, so B plus, so minus minus plus, so B minus, that's the potential difference between P to N or two electrodes. And you know that B plus at point P is greater than 0, B minus negative volt is also greater than 0. The value is also greater than 0. Or choose equal to 0.
to equal to 0. So the total potential difference between these two electrodes is called VD, and the difference is called the electromotive force, and that difference is VD is called electromotive force. Okay, VD is called electromotive force. That's simple, EMA, and that's the potential difference between two electrode or P2N. Okay. Right, and symbol of the electromotive force is epsilon और E. कुछ बुक में अगर E होगा और कुछ बुक में अगर एप्सिलॉन भी मिलेगा, दोनों ही सेम होगा, ठीक है, जो तुम दे सकते हो. एंड दैट द EMF इज ग्रेटर देन 0 because the B plus is greater than 0 and B minus also greater than equal to 0. So total the difference between is also greater than 0, means the addition of these two potential is greater than 0. So the VD or called E or EMF is greater than 0. Right? So is actually potential difference, not a force. So that is a potential difference, not a force. Okay, so potential difference P2N. So the V is a potential difference. Now for in case of the two electrolyte, the potential difference is, look that, so V is the potential difference or VD is the potential difference. So total potential difference क्या होगा, V. तो ये दोनों पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो V आएगा वो देखो मैंने पहले क्या बोला था, यहां से यहां तक जा सकता है अगर कोई पाथ होगा तो पाथ कहां से मिलेगा, तो पाथ मिलेगा देखो P2 एक पॉइंट A, P2A और एक पॉइंट दे दिया B, A2B और एक पॉइंट B2N. सो टोटल पोटेंशियल, सो B मतलब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, ए पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ से पास कर सकता है करंट, यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई पाथ नहीं है ना, करंट तो एयर से फ्लो करके नहीं जाएगा, तो उसको कुछ कंडक्टर चाहिए यहाँ से इधर जाने के लिए. सो द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P2A, so PD between P2A plus PD between A2B and plus PD between B2N. Okay, so that's called the इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, V प्लस था, मैंने एज्यूम कर लिया था, यहाँ पे क्या क्या माइनस, V माइनस, तो ये नेगेटिव था तो इसलिए माइनस आ गया, पॉजिटिव था यहाँ पे तो प्लस आ गया, तो डिफरेंस क्या होगा, तो V प्लस माइनस और हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, ठीक है. सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा तो क्या मिलेगा, देखो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. That's called the EMF, electromotive force. So EMF is the potential difference between the two positive and negative electrodes. So positive and negative electrode means anode and cathode. The potential difference is called the electromotive force. This is a very important thing. Right. So now the no current flowing through cell. If two electrodes are open, so no current flowing through the circuit. अगर कोई वायर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा. ओके, इन केस ऑफ द हाउएवर R इज इनफाइनाइट, इफ R यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा ये अगर फाइनाइट होगा मतलब कुछ वैल्यू रहेगा तब तो क्या होगा, सो I इज नॉट जीरो. ओके, सो इफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव N इज ओपन, सो नो करंट फ्लो
इन द सेल। अगर ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट, ये वाला आई जो था ना, पहला वाला सिंबल दे दिया था, ये 2 पॉइंट लिया था इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, अब द पोटेंशियल, अगर आर जो रेजिस्टेंस होगा, ये जरूरी है क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए एक कंडक्टर होना चाहिए, मतलब एक वायर होना भी जरूरी है। तो दैट द V इक्वल टू, क्या मिला था देखो, पहले तो मिल गया था V प्लस प्लस और V माइनस, टोटल E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जनरेट कर पाएगा। लेकिन अब क्या आएगा देखो, अगर इन दोनों के बीच में कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां से यहां तक भी करंट फ्लो कर पाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें करंट फ्लो कर सकता है, राइट। सो उसमें अगर ये वाला इस डायरेक्शन पे जाएगा, इसको पूरा ऑपोजिट पे जाएगा, कुछ फ्लो कर सकेगा। तो अगर एज्यूम कर लिया, यहाँ पे जो छोटा वाला एक रेजिस्टेंस होगा जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से आएगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, छोटा आर इज ए रेजिस्टर, और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू होगा छोटा आर, इसका रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस छोटा आर फ्रॉम these two electrodes. So resistance is छोटा r, so potential drop between two electrode is I over I times small r. So there's the I times small r, right? There's the potential drop. Okay, so the potential drop between two electrodes. So that's the in opposite direction. So that is a 180 opposite, so a minus sign. That is the loss. That is the loss. Okay, and also called loss volt. The name is loss volt, right? तो ये क्या होगा, ये सेल का लॉस होगा। तो ये जितना करंट जनरेट कर पाएगा, जनरेट जितना करेगा, ये क्या होगा, उसका लॉस होगा, आई टाइम स्मॉल आर, राइट, ठीक है ना। ये कौन जनरेट करेगा, ये जो आर होगा, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का रेजिस्टेंस होगा, जिसका वैल्यू बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, और इसकी वजह से कुछ लॉस होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग लॉस वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या मिलता था, ई मिलता था, आई आर क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कुछ लॉस आ गया, तो जो सेल जो था कितना वोल्टेज जनरेट कर पाया, ये कैपिटल V वाला जनरेट कर पाया, क्लियर, राइट, ओके। नाउ अगर हमने देखा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, ऊपर में क्या है, एक रेजिस्टेंस R है जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, जो सेल एक बैटरी जो पावर जनरेट कर पाएगा, जो करंट जनरेट कर पाएगा, एक्चुअली जो करंट जनरेट कर पाएगा वो रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट होगा, राइट। अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा देखो, नाउ ये अगर करंट सोर्स होगा, मतलब I जनरेट कर पाएगा, ठीक है ना। So that is the plus, that is minus, and that is the V, ये वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, इन दोनों पॉइंट का होगा V, ये I करंट जनरेट कर पाएगा, एक रेजिस्टेंस के साथ होके यहाँ तक चलाएगा, ये वाला ये सर्किट है। सो ये आर है, ये एक इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल है, जो ये है, जो ये V जो होगा ये वो V है, इसका वैल्यू सेम है, इसको एक सर्किट बोलेंगे, हमने सर्किट बना लिया। सो फ्रॉम इस सर्किट से हमको क्या पता चलेगा, फ्रॉम ओम्स लॉ, सो V इज इक्वल टू I टाइम्स R, दैट्स द कैपिटल R, दैट्स द V, दिस I करंट, और ये R होगा इसका रेजिस्टेंस, ओके। सो तो करंट क्या होगा, यहाँ से ये रेजिस्टेंस को होकर ये नेगेटिव पे आएगा, पॉजिटिव से होकर यहाँ से नेगेटिव पे आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज V को अगर हम लोग इस V इक्वल टू क्या मिला था, हम ओम्स लॉ से पता चला था IR, तो इस IR को यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ओके। सो इसको अब ऊपर में देख लो तो क्या मिलेगा, तो I कैपिटल R माइनस ये में माइनस I टाइम्स स्मॉल r,
तो इधर आ जाएगा आई कैपिटल आर प्लस आई टाइम स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। तो आई को कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दैट इज आल्सो ईएमएफ एंड दैट इज आई इक्वल टू ईएमएफ ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर? ओके, तो ये मिल गया ये सर्किट का आई मतलब करंट। ठीक है, ये छोटा और क्या था, ये इलेक्ट्रोलाइट के वजह से जो सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया था वो हो गया था ए टू बी पॉइंट में। ए टू बी पॉइंट में रेजिस्टर क्या था, इट्स वेरी स्मॉल आर। ठीक है, ये बड़ा वाला कैपिटल आर क्या है, यहाँ पे सर्किट में कोई भी लोड लोड दे दिया, ये रेजिस्टेंस क्या होगा, एक लोड होगा। कोई बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो लोड दे दिया, मतलब जिसका से करंट फ्लो कर पाएगा और पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। ठीक है, ये वो दे दिया सर्किट का, ये दे दिया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाला आउटर रेजिस्टेंस मतलब लोड, ये वाला हो गया ईएमएफ, ये हो गया करंट। ठीक है, सो क्लियर हो गया व्हाट इज सेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, एंड व्हाट इज करंट क्या होगा, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड आल्सो कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो जो छोटा आर, ये क्या चीज है। क्लियर हो गया ना? और एक चीज याद रखना है, ये जो छोटा आर जो है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये डिवाइस को सेल को भी प्रोटेक्ट करता है। क्यों, अगर कुछ ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो ये डैमेज होने का चांस है, तो इसको रेजिस्टेंस जो है वो करंट को कम कर देता है, तो ये सेफ भी कर पाएगा। जैसे V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई टाइम्स आर। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, तो मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, ये याद रखना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल। पहले हम लोग सीरीज वाला डिस्कस कर लेते हैं। सेल अगर सीरीज में होगा तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सेल इन सीरीज, तो सीरीज में होगा तो क्या होगा देखो, तो दो सेल ले लिया, तो इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन 1 और E1, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका है एप्सिलॉन 2 और E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2। ये प्लस ये माइनस तो करंट इस डायरेक्शन पे जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो करंट भी राइट टू लेफ्ट में आएगा। ये वाला दे दिया ए पॉइंट, इसमें दे दिया बी पॉइंट, ये होगा सी पॉइंट। तो एक चीज याद रखना, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट का वैल्यू सेम होगा लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल है VC, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B, मतलब A टू B, VAB अब क्या होगा, सो दैट इज VA माइनस VB, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस और कॉल पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसमें क्या होगा देखो, तो सप्लाई कर सकेगा कितना, एप्सिलॉन 1 ईएमएफ, और माइनस क्या होगा, एंड उसके साथ माइनस होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब लॉस्ट वोल्ट जो था ना, इस R1 की वजह से जो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, लॉस्ट वोल्ट, सो वो होगा I टाइम्स R1, राइट। सिमिलरली B2C क्या होगा, VB माइनस VC, दैट इज ईएमएफ क्या है, एप्सिलॉन 2 और E2। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, मतलब लॉस वोल्ट जो था, सो दैट इज I, दोनों करंट सेम होगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का, R2। ठीक है, तो अब टोटल अब क्या होगा, A टू B में कितना ड्रॉप होगा, A
एंड बी, सॉरी ए एंड सी में, सॉरी, कितना ड्रॉप होगा, मतलब वी ए टू सी। तो सिंपल, इन दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो टोटल ड्रॉप मिल जाएगा। वी ए टू सी क्या होगा, दैट इज अ वी ए माइनस वी सी। ये कहां से आएगा, इन दोनों का ऐड कर दोगे तो बी बी कट जाएगा, वी ए माइनस वी सी आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, सिंपल, वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी, कट गया वी ए वी सी। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा इसका, एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। तो सिंपल क्या होगा, इन दोनों ऐड होगा, सो दैट इज एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, माइनस को कॉमन ले लिया, आई भी कॉमन चला जाएगा, दैट इज आर 1, इंटरनल रेजिस्टेंस का भी ऐड होगा, तो दैट इज द वी वी ए टू सी, मतलब वी टोटल क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं, वी टोटल क्या मिलेगा, वी टोटल मिल जाएगा हम लोगों को एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई, दैट इज आर 1 प्लस आर 2। अगर नाउ we put epsilon 1 plus epsilon 2 that is equal to also epsilon, that is the electromotive force. So and R1 plus R2, the total internal resistance of that two cell, that is small r, so V total is equal to epsilon minus I small r। ठीक है, नाउ अब अगर बहुत ज्यादा होगा, 3 होगा तो क्या होगा, इसमें 3 ऐड होगा, 4 होगा तो इसमें 4 ऐड होगा, मतलब जितने ऐड कर सकेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगर 3 हुआ तो 4 चलता जाएगा, यहाँ पे R3 R4 डॉट 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 चलता जाएगा, सिंपल जस्ट ऐड होते होते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल। So in equivalent EMF in series combination, N cell is just the sum of their individual EMF। तो क्या मिला था यहाँ पे, so इंडिविजुअल जो EMF था वो जस्ट सिंपल ऐड हो जाएगा, एल्जेब्रिक ऐड, एंड सिंपल ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी एल्जेब्रिकली ऐड होते जाएगा। नाउ इन पैरेलल, तो सेल इन पैरेलल, तो पैरेलल में अब क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है देखो, सो एक ऐसा आएगा, इधर में एक जाएगा, इधर में ऐसा दे दिया, इसमें भी हमने ऐसा दे दिया, ऐसा कनेक्ट हो गया, एक जंक्शन और एक जंक्शन, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ होगा एप्सिलॉन 1, इसका ईएमएफ होगा इस सेल का एप्सिलॉन 2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। तो करंट ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो ये I1 इसको दे दिया I2, ये मिलके बन गया I। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, I इसको दे दिया I1, इसको भी दे दिया I2, सेम ही होगा अगर इसको घुमा के यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो। अब देखो, अब हम लोग अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा, सो पोटेंशियल ड्रॉप इन दो जंक्शन पॉइंट, जंक्शन 1 एंड दैट इज जंक्शन 2, ये दो जंक्शन बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, दोनों सेम हो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब J1 एंड J2 ये वाला दोनों सेम होगा, इसमें भी जो होगा इसमें भी सेम ही होगा। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या मिलेगा देखो, तो I इक्वल टू दो डिफरेंस हो गया था, ये वाला और ये वाला दोनों मिलके ये बना है, तो मतलब I क्या, I1 प्लस I2, इन दोनों को मिलके ये I बना है। ठीक है, सो नाउ द, ये जो पॉइंट जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2, ये जो पॉइंट जंक्शन दे दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो दोनों का बीच में कितना ड्रॉप होगा, बाय इसको लेकर एक बार और इसको लेकर एक बार देख लेते हैं। सो पोटेंशियल ड्रॉप
J1 and J2, जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2 क्या होगा? तो दैट इज जंक्शन 1 माइनस जंक्शन 2। एंड अगर इसमें देंगे, अगर पहले वाला जो सेल होगा, पहले सेल को लेके देखेंगे तो क्या होगा? तो इसमें जाएगा, देखो एप्सिलॉन 1 माइनस I2, इसमें देंगे तो एक्चुअली इसमें अगर I2 जाएगा, अलग कर देता है, इसमें इजी हो जाएगा। इसमें दे दिया 2 से 2, इसको दे दिया 1, सिंपल ही रहेगा। 2 को 2 दे दिया, 1 को 1 दे दिया, सिंपल। सो एप्सिलॉन 1 और 1 में अगर सेल लेंगे तो I1, तो ये बन गया R1। सो V जंक्शन 1 जंक्शन 2 फ्रॉम नीचे वाला, सो सेल 1 या सेल 2, तो 2 को लेंगे तो क्या होगा? टोटल ईएमएफ है एप्सिलॉन 2 और E2, दैट्स द I2 R2। ठीक है, नाउ अब दोनों क्या करेंगे, देखो हम लोग, अब हम लोग ये जो सेल का जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा ना, ठीक है। तो I1 प्लस I2 अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो I1 I2 क्या होगा? तो इसको हमें दे दिया हम लोगों ने, तो V J1 J2 माइनस V माइनस एप्सिलॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस I1 R1, पहले वाले को लेकर। तो J1 J2 का हमने लिखा V, हमने दे दिया ये वाला J1 J2 दैट इज इक्वल टू V होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो दैट इज V माइनस एप्सिलॉन 1 और EMF 1 माइनस कर दिया, और इसको अगर पहले हम लोग ने एप्सिलॉन 1 माइनस V ऑल्टरनेट कर दिया तो क्या होगा? ये वाला प्लस आ जाएगा, ये माइनस, so that is I1 R1, so that is I1 equal to epsilon 1 minus V over R1, and सेल 2 का क्या होगा? इसका भी V दे दिया, so that is V equal to epsilon 2 minus I2 R2, so alternate कर दिया, so epsilon 2 minus V equal to I2 R2, so epsilon 2 minus V over R2 is equal to I2, तो I1 मिल गया, I2 भी मिल गया, तो दोनों के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा? देखो दोनों का अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो I1 का वैल्यू क्या था? एप्सिलॉन 1 माइनस V ओवर R1 प्लस एप्सिलॉन 2 दूसरे का माइनस V ओवर R2, ठीक है ना। तो टोटल करंट मिल जाएगा। तो टोटल करंट अब क्या होगा? तो टोटल करंट अब क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दोनों को एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? R1, अगर इसको अलग से कर लेते, एलसीएम नहीं, इसको अगर हम लोग अलग से करेंगे तो क्या आएगा? देखो एप्सिलॉन 1 ओवर R1 माइनस B ओवर R1, एप्सिलॉन 2 ओवर R2 माइनस B ओवर R2, ठीक है। सो एप्सिलॉन 1 ओवर R1 प्लस एप्सिलॉन 2 ओवर R2, मतलब EMF ओवर R1 प्लस EMF ओवर R2, EMF 2 ओवर R2 माइनस B कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ये वाला आ जाएगा करंट। टोटल जो करंट जो पैरेलल सर्किट है वो कैसे जनरेट कर पाएगा, ठीक है। सो क्लीन कर दिया पूरा ही। अब पूरा यहां से उस बोर्ड तक जाते हैं हम लोग, ठीक है, वहां से। तो इट इज आई इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन 1 R1 प्लस लिख लेता हूं एप्सिलॉन 2 ओवर R2 माइनस B 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, तो हमने एलसीएम किया R1 R2,
एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 माइनस V R1 R2 एलसीएम होगा तो R2 प्लस R1 दैट इज इक्वल टू I। अब हम लोग R1 और R2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R1 तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड R1 R2 ओवर R2 प्लस R1। ये क्यों करेंगे हम लोग? एक्चुअली हम लोग ये V का जो वैल्यू है ना, ये V, ये जो V ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब कितना वोल्टेज वो जेनरेट कर पाएगा अगर दो सेल को अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे। ठीक है, वही सिंपल। सो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 ओवर R1 प्लस R1 R2। सो R1 R2 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से। ठीक है, so that is R1 plus R2 minus V R2 plus R1 over R1 R2 R1 R2 R1 plus R2 तो सिंपल कट जाएगा पूरा, ये वाला कट जाएगा। सो V इक्वल टू क्या मिलेगा फाइनली? इसको अगर इधर भेज देंगे और उसका और इसको अगर इधर भेज दे, इसको उधर ले लिया तो क्या होगा? एप्सिलॉन 1 R2 एप्सिलॉन 2 R1 R1 प्लस R2 ये वाला आ जाएगा और I उधर चलाएगा तो I इक्वल टू क्या मिलेगा? R1 R2 ओवर R2 प्लस R1 और R1 प्लस R2 दैट इज द V। ठीक है, सो मिल गया हम लोगों को। सो इधर देखो, सो दैट इज इसमें ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो इसको हमने नाम दे दिया R इक्विवेलेंट EQ एंड इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन EQ। सो V इक्वल टू फाइनली क्या मिला? EQ माइनस I R EQ। ठीक है, सो क्लियर हो गया। अगर अब हम इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं थोड़ा। सो EQ मतलब एप्सिलॉन EQ इक्वल टू क्या मिला? एप्सिलॉन 1 मतलब ये वाला वैल्यू R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 ओवर R1 प्लस R2 और R EQ क्या मिला? ये वाला वैल्यू दैट इज R1 R2 तो R2 प्लस R1। अगर इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन EQ ओवर R EQ अगर रेशियो ले लिया तो क्या मिलेगा देखो। सो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 ओवर R1 प्लस R2 ये ऊपर चला जाएगा R2 प्लस R1 ओवर R1 R2 कट गया फाइनली क्या मिलेगा? दोनों को अलग कर देंगे तो एप्सिलॉन 1 R2 R1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 ओवर R1 R2 R1 और कट जाएगा, R2 कट जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 ओवर R2 दैट्स द इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्विवेलेंट क्या होगा और उसका रेशियो R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चला हमने, अगर जितना हम लोग ये वाला पैरेलल में कनेक्शन करते जाएंगे तो कितना होगा? तो 1 ओवर इसको ले लेंगे 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? बहुत सारा होगा 2 3 4 5 6 7 इसको पता चल जाएगा ऐसे। सो 1 ओवर R इक्विवेलेंट
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 तो 1/r3 प्लस n नंबर ऑफ अगर सेल होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर Rn होगा, टोटल सबको हम लोग सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बहुत सारा सेल भी होगा तो भी क्या होगा, तो उसको भी अगर हम लोग सिंपली ऐड ही करते जाएंगे, उसका रेशियो भी हम लोग कैसे करेंगे, अगर n नंबर होगा तो रेशियो भी, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो डॉट डॉट करके एप्सिलॉन n ओवर आर एन, मतलब n नंबर ऑफ अगर सेल होगा उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा एप्सिलॉन n और en और Rn होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं। कहीं पर कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना है, ठीक है। और जो वीडियो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कैसे लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।